Good morning, children. So we have already done chapter number 1 and today we are going to start chapter number 5 Rikki Tikki Tavi as a second chapter. Okay children, fascinating ruin to finish kiya humne and now we are going to start this Rikki Tikki Tavi chapter number 5 as a second chapter. Okay, the rest of the chapters chapter 2 3 4 हम बाद में डिस्कस करेंगे. Okay children, this is very interesting story, so I want to explain you this first. Okay, so what the title of our chapter is? Rikki Tikki Tavi. So who is this Rikki Tikki Tavi and what happened, what the story is about? We'll learn everything about this in the story. And Rikki Tikki Tavi is the name of a mongoose. Okay, hope everyone know what mongoose is. Mongoose is an animal which hunts snakes. So let us do the warm up exercise given over here and see the beautiful picture of mongoose that is given over here. Rikki Tikki Tavi is a fascinating mongoose that talks and thinks like a human child. So here Rikki Tikki Tavi is a fascinating. Already you know the meaning of fascinating. Yes, what it is children? Very interesting. Good. Fascinating mongoose which talks and thinks like a human child. Though it is an animal, it just thinks and it just talks like a human child. The mongoose is known to be a fierce hunter. Yes, we know that mongoose is a very good hunter. Mongoose is a good hunter. Now work in groups and discuss these questions. So here some questions are put up on mongoose. So let us discuss what these are. Does a mongoose makes a good pet children? मंगूस को कोई पेट जैसा घर पे रख सकते हैं क्या? यस, अगर रख सकते हैं. इफ़ यू आर अ ट्रेन पर्सन, मान लो आप एक ट्रेन पर्सन हैं और मंगूस वैसा मोस्टली अप टू व्हेन यू डोंट हर्ट इट वोंट हर्ट अस, मोस्टली ऐसा होता है. बट स्टिल हाँ, कुछ केयर लेके जो उसमें ट्रेंड है वैसे ही है तो dangerous animal है, but still some persons used to keep it as a pet. Mongoose is very playful and thus we can make it it would make a good pet. वो एक अच्छा pet जैसा रख सकते हैं. But there are few disadvantages to ऐसी animals को रखने में कुछ disadvantages भी है. Other than advantages, some disadvantages are there. What are the disadvantages of having a mongoose as a pet? mongoose को एक pet जैसा रखने में क्या problems हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं children? It is a fierce hunter. सो एक बहुत बड़ा हंटर है. सो कभी अगर मान लीजिए इफ़ वी डोंट नो अबाउट द एनिमल प्रॉपरली एंड इफ़ इट इज़ नॉट वो अपने साथ गुड रिलेशन में नहीं है, सो इट मे हार्म अस. इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग दैट इट मे हार्म अस. इट कैन कॉज हार्म टू द चिल्ड्रन एंड टू द हाउस होल्ड, टू वट एवर द हाउस होल्ड आइटम्स या पीपल हु आर लिविंग इन द हाउस. ये भी हो सकता है. कीपिंग ए मंगूस एज अ पेट इज़ बैंड इन इंडिया. व्हाट डू यू मीन बाय बैंड? स्टॉप्ड है ना, गवर्नमेंट इसको बैन कर दिया, मतलब रोक चुके हैं. सो कीपिंग मंगूस एज अ पेट, मंगूस को एक पेट जैसा घर पे रखना बैन किया था इंडिया में. डू यू एग्री विद दिस? आप इससे एग्री होगी क्या? यस, इंडिया में मंगूस को एज ए पेट जैसा रखना इलीगल माना जाता है. इलीगल मीन्स इट इज़ अ पनिशेबल एक्ट. आप ऐसा कर नहीं सकते हैं क्योंकि दिस आर द प्रोटेक्टेड स्पीसीज इन इंडिया. इन सबको अपन को बचा के रखनी है, ये स्पीसीज़ को. वाइल्ड एनिमल्स को वाइल्ड एनिमल्स का ध्यान रखने वाले बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट में. गवर्नमेंट ने अलग से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी है. सो दे यूज़ टू टेक केयर ऑफ दिस. अगर आपको किसी को ऐसा रखनी हो तो यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से. परमिशन लेके, ऐसा नहीं आपको अच्छा लगा मेरा मर्जी में ला के रखूँगा. वी कांट डू दिस इन आवर कंट्री. ओके, सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में ये एनिमल की स्पीसीज़ को रख के उनको लुक ओवर करते हैं, उनको बहुत केयरफुली उनको प्रोटेक्ट किया जाता है. एंड जितना हो सके इट्स नॉट गुड टू हैव ए पेट मंगूस, क्योंकि अगर घर पे सबकी हाउस में किड्स होते हैं, सो किड्स को मंगूस हर्ट करने की चांसेस होते हैं. सो दैट्स वाई जितना हो सके इट इज़ वाइज टू नॉट कीप मंगूस एज अ पेट. डू यू नो ऑफ पीपल हु कीप वाइल्ड एनिमल्स as pets? Should they be doing this? Discuss. So if do you know any person who keeps wild animals as pets? Children, ये कभी सुना क्या? हाँ, हमारे घर पे लायन है मैम, टाइगर है, मैं तो एलिफेंट रखता हूँ, मैं चीता रखता हूँ.
ऐसा है क्या किसी के घर पे? टिल नाउ आई सॉ रैबिट्स, डॉग्स एंड फ्यू कैट वगैरह, जिसकी किसी किसी को शौक है वो रखेंगे, बट ऐसा आप एलिफेंट, टाइगर, लायन या जिराफ इन सबको घर पे रखते हैं क्या एज पेट्स? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. पीपल शुड नॉट कीप वाइल्ड एनिमल्स एज पेट्स. ये बहुत डेंजरस एक्टिविटी है, वो ये हम कर ही नहीं सकते हैं. एक्चुअली वाइल्ड एनिमल को ट्रेन करके रख के वो जू में जो उनको संभालते हैं ना, दे कैन डू इट. जैसा एलिफेंट को भी कुछ लोग संभालते हुए आपने देखा होगा, बट दे आर ट्रेन्ड पर्सन्स, दे नो हाउ टू हैंडल इट. बट वी अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग can't do this because ये वाइल्ड एनिमल्स पता नहीं when they become aggressive बहुत गुस्सा हो जाएंगे और उनको अपन ईजीली उनको अपन ईजीली हैंडल नहीं कर पाएंगे. इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग टू हैंडल देम एंड इवन इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द लॉ. लॉ मीन्स वट एवर द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर गिवन बाय आवर गवर्नमेंट. सो ये लॉ की अगेंस्ट है, लॉ की व्यतिरेक है. सो वी कैन डू लाइक दिस. सो डू यू नो एनी पीपल? मुझे तो नहीं पता है कि ऐसा कोई पीपल है जिसने वाइल्ड एनिमल्स को रखे हैं. सो माई आंसर इज़ नो. एंड शुड दे बी डूइंग दिस? वो ऐसा कर सकते हैं क्या? नो. अगर किसी ने रखा तो इट इज़ अ पनिशेबल एक्ट, ऐसा रखना नहीं चाहिए था. सो इतना कुछ हमने क्यों डिस्कस किया बेटा ये वार्म अप एक्सरसाइज में? बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर विच इज़ बेस्ड ऑन ए वाइल्ड एनिमल दैट इज़ fascinating mongoose whose name is Rikki-Tikki-Tavi. Okay, let us start the reading. This extract, extract, what do you mean by extract children? Extract means एक छोटा सा पैसेज विच इज़ टेकन फ्रॉम ए टेक्स्ट हो या कोई शॉर्ट फिल्म हो या स्टोरी हो, लॉन्ग स्टोरी हो या नरेशन में से किसी में से एक छोटा सा पैसेज अगर लिया और उसको एक चैप्टर जैसा हमारा बनाया. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन दिस स्टोरी. दिस इज़ अ स्मॉल एक्सट्रैक्ट. एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है. कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द जंगल बुक. जंगल बुक नाम से एक बुक है, इसमें से एक शॉर्ट पैसेज लिए हैं विच वॉज रिटन बाय रडयार्ड किपलिंग. Rudyard Kipling, he is the author of that book and he has written this Jungle Book and he has written so many interesting topics about the animals in the jungle. And this particular chapter, this is a small extract, this is a small short passage taken from this book and is the story of the brave Rikki-Tikki-Tavi who fought the cobra nag single-handed. So the story is about whom children? This story is about a brave, बहुत साहसी Rikki-Tikki-Tavi है. What it had done? Who fought the cobra nag, मतलब नाग पता है ना, स्नेक, कोबरा से फाइटिंग किया है. एंड यू नो दैट मंगूस एंड स्नेक के बीच में जो फाइटिंग है दैट इज़ मतलब इन दोनों की एक अच्छा बैटल फाइटिंग चलता है इन दोनों की. एंड मोस्टली ऑलवेज द मंगूस विन्स, ज़्यादातर टाइम मंगूस ही विन होता है. सो ये नाग और कोबरा की नाग एंड रिक्की-टिक्की के बीच में बहुत बड़ा फाइटिंग हुआ और ये फाइटिंग में बहुत होशियारी, बहुत साहसी से रिक्की-टिक्की ने लड़ाई किया एंड लड़ा और इसने सिंगल हैंडेडली मतलब विदाउट एनी अदर हेल्प ये रिक्की-टिक्की ने अच्छा से ये फाइटिंग में जीत गया है. इट वॉज़ अ वॉर फॉट फॉर दार्जी. अरे असल ये वॉर हुआ क्यों? ऐसा एक बैटल या फाइटिंग हुआ क्यों? व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस? इट वॉज़ अ वॉर फॉट फॉर दार्जी. ये वॉर किसके लिए फाइट किया गया था? दार्जी के लिए. हु इज़ दिस दार्जी? दार्जी इज़ द टेलर बर्ड. टेलर बर्ड, यू नो अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स. टेलर बर्ड पता है ना, इट कैन स्यू इट्स ओन नेट्स. वो अपना नेस्ट खुद बना सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर सा, है ना. सो ये टेलर बर्ड के लिए कुछ प्रॉब्लम आया होगा. देन अपना रिक्की-टिक्की-टावी ने नाग के साथ फाइटिंग करके बहुत अच्छा काम किया था. सो लेट अस नो व्हाट इट इज़. अ ब्रिटिश फैमिली लिविंग इन इंडिया. एक इंडिया में एक ब्रिटिश फैमिली रहते हैं. दे फाउंड रिक्की-टिक्की इन देयर हाफ कल्टिवेटेड गार्डन. सो वेयर दे फाउंड रिक्की-टिक्की-टावी? रिक्की-टिक्की को उन्होंने अपनी हाफ कल्टिवेटेड मीन्स चिल्ड्रन नॉट वेल मेंटेन्ड, मतलब उसको अच्छा से मेंटेन नहीं किया है वो गार्डन को. उसमें बहुत सारा वीड्स हो सकते हैं. वीड्स मीन्स वो जंगली घास वगैरह, अनवांटेड प्लांट्स, क्लाइंबर्स, ये सब बहुत कुछ, ट्रीज, बुशेस, ये सब बहुत कुछ ग्रो हो गए होंगे उस गार्डन में. सो दैट्स वाई दे रिफर्ड इट एज हाफ कल्टिवेटेड. हाफ कल्टिवेटेड मीन्स विच इज़ नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड. ऐसा एक गार्डन है, उसमें रखे, उसमें वो ब्रिटिश फैमिली सॉ दिस रिक्की-टिक्की-टावी.
When they first saw him, जब पहली बार उन्होंने देखा था, he was almost dead. अपना ये रिकी टिकी टावी जो है, he was in a dead position, means he was in a ill condition, poor health में था वो. After a terrible flood had swept him away into the garden. आया कैसा ये रिकी टिकी ये ब्रिटिश फैमिली के हाफ कल्टिवेटेड गार्डन में? हाउ ही केम ओवर देयर? बिकॉज अ टेरेबल फ्लड. टेरेबल मीन्स बहुत भयानक, भयंकर, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, भयंकर फ्लड हुआ था एक बार. देन उस टाइम पे दैट हैड स्वेप्ट हिम अवे. स्वेप्ट हिम मतलब स्वेप्ट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ स्वीप. स्वीप मीन्स क्लीन अवे, बह जाना. तो ये बहते हुए ये फ्लड में पता नहीं रिकी टिकी कहाँ था, किस जंगल में था. एंड इट इज़ जस्ट वो ये फ्लड ओवर होके ये फ्लड की ये टेरेबल भयानक जो फ्लड आया ना, ये तूफ़ान में ये इधर आ गया था, स्वेप्ट अवे हो गया पानी के साथ साथ. ये क्लीन अवे होके ये ब्रिटिश फैमिली के गार्डन में आ गया, पहुंच गया था. द फैमिली टू गेट गुड केयर ऑफ हिम. फैमिली ने इसका बहुत अच्छा ख्याल रखा. बिकॉज मंगूस हैड फेस्ड द टेरेबल, वो भी नॉर्मल फ्लड नहीं है, इट इज़ अ वेरी भयंकर, भयानक फ्लड है. तो मंगूस को पता भी नहीं चला कहाँ कहाँ टकरा गई होगी, पानी में, पत्थरों में, ट्रीज में, पता नहीं. ये सब हो के वो इतना इल कंडीशन में, मतलब उसकी बॉडी पूरा वुंडेड हो गया होगा, घायल हो गया होगा. एंड वो स्वेप्ट अवे होके इनकी गार्डन में आके गिर पड़ा. और ये फैमिली ने इसको देख लिया. एंड देन दे इमीडिएटली took care of him. वो बहुत अच्छा केयर किया. and he was soon trying to be friends with the little boy in the family. फिर धीरे धीरे ये रिकी टिकी टावी he was soon trying to be, वो धीरे धीरे बहुत अच्छा फ्रेंडशिप करने लगा. किसके साथ? with the little boy in the family. इस फैमिली में एक छोटा बॉय कोई होगा. सो उसके साथ ये फ्रेंडशिप भी करने लग गया था. सो अपना रिकी टिकी टावी कैसा आया, दिस इज़ द स्मॉल इंट्रोडक्शन. अभी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक स्मॉल इंट्रोडक्शन है. सो ये एक्सट्रैक्ट हमने जंगल बुक में, जंगल बुक this is the name of a book from where this extract is taken, and how Rikki Tikki Tavi came to the garden of the British family. And he was in a bad condition, ill condition. He looked very sickly, बहुत sickly दिखा था वो. Then they took good care of him. तो being a wild animal भी, जितना भी wild animal हो, but still it understood that, मंगूस को ये समझ में आया कि हाँ इन्होंने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा, बहुत केयर किया, मतलब दे आर माई, ये लोग मुझे हार्म नहीं पहुँचाएंगे. सो ऑब्वियसली जब तक आप कोई वाइल्ड एनिमल को आप खुद हार्म नहीं पहुँचाएंगे, दे ऑल्सो डोंट डू दैट इन रिटर्न टू अस, है ना. सो धीरे धीरे रिकी टिकी टावी वो फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलने लग गया. एंड इट सून वांटेड टू बी अ फ्रेंड विद अ स्पेशली लिटिल बॉय के साथ फ्रेंड होने लग गया. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. यस, you can see the story. We can see a boy and the mongoose sitting on his shoulders. उसकी shoulder पे बैठी है. The mongoose jumped on the small boy's shoulder. वो जो little boy है उनके घर में उसकी shoulder पे jump कर लिया. And the boy called him Rikki Tikki Tavi. तुरंत पता नहीं वो boy को क्यों लगा, ये mongoose को देखते देखते उसको normally if we also keep pets at our homes, what we used to do, we used to give them a good name. एक good अच्छा नाम रखते हैं. whatever which we find correct, which we find apt, जो हमको अच्छा लगे ऐसा नेम दे देते हैं. जैसा ही रिकी टिकी अच्छी कंडीशन में हो गया. एंड इट इमीडिएटली जंप्ड ऑन द स्मॉल बॉय शोल्डर. व्हेन द बॉय सॉ द मंगूस, व्हाट ही हैज़ कॉल्ड हिम, ही स्टार्टेड कॉलिंग हिम एज रिकी टिकी टावी. ये नेम दिया था, है ना, इंटरेस्टिंग नेम है. Teddy, the boy had been lonely in this house. ये Teddy, he is the only boy in the house. So he is feeling very lonely. अकेलापन बहुत feel कर रहा था. And what is the name of the boy? Teddy. He now felt better, but now उसको अच्छा लग रही है because he has a pet at his home and he is feel, मतलब उसके साथ थोड़ा टाइम पास होने लगा तो he is feeling a little bit better. Ouch! He is tickling under my chin. What the little boy told? Ouch! आउच. देखो बेटा, आउच ये वर्ड के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क देख सकते हो. सो ऑब्वियसली व्हाट इट इज़, ये एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है. जैसा वाव, ब्रावो, हुरे, ये सब एक्सक्लेमेशन वर्ड्स हमने इंटरजेक्शन में लर्न किए थे ना. सो जस्ट लाइक दैट आउच इज़ एन एक्सक्लेमेशन वर्ड विच एक्चुअली ये आउच हम ऐसी सिचुएशंस में व्हेन वी फील पेन वी यूज़ दिस टाइप ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस पेन. मतलब अपनी बॉडी में कुछ तरह की पेन होता है ना, उसके लिए कभी आपको भी अचानक लग गया तो
आउच, ऐसा अपन एक वर्ड ये यूज़ नहीं करते हैं. द सेम थिंग हैपेंड हियर. आउच, ही इज़ टिकलिंग अंडर माई चिन. टिकलिंग मीन्स क्या होता है? टिकलिंग मीन्स वो गुदगुदी कर रहा था इसको, मीन्स रबिंग अगेंस्ट हिज बॉडी, उसकी बॉडी स्किन पे. ये मंगूस की बॉडी की जो फर हो या वॉटेवर वो इसकी चिन पे लग रही है और उसकी वजह से ये डिस्कम्फर्ट, हल्का सा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है. एंड ही इज़ सेइंग आउच, ही इज़ टिकलिंग अंडर माई चिन. मेरी चिन के नीचे तो ये गुदगुदी करा रहा है. डोंट बी फ्राइटेंड टेडी. फिर उसकी फादर आए होंगे मोस्टली, है ना. डोंट बी फ्राइटेंड, बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है टेडी. दैट्स हिज वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स. एक्चुअली ही वॉन्ट्स टू बी अ फ्रेंड विथ यू. ही मतलब ये मंगू सबसे फ्रेंडशिप करना चाहता है. दैट्स वाई ही जस्ट वॉन्ट्स टू प्ले विथ यू एंड इन दिस वे इट इज़ एक्सप्रेसिंग इट्स फ्रेंडशिप. वो अपना फ्रेंडशिप तुम्हें बताना चाहता है. डोंट बी फ्राइटेंड, इससे आपको कुछ नहीं होगा. द मंगूस स्पेंट ऑल द डे रोमिंग ओवर द हाउस. मंगूस क्या करता था दिन भर? सी द वर्ड रोमिंग ओवर, ROAMING. रोमिंग ओवर मीन्स मूविंग हियर एंड देयर. अपने घर में इधर उधर घूमते हुए रहना. विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी पर्पज़, मतलब कुछ काम के बिना नहीं घूमते हैं. नाउ व्हाट इज़ गोइंग ऑन? पैंडेमिक इज़ गोइंग ऑन, सो यू आर एट होम्स एंड समटाइम्स क्या आपको अच्छा नहीं लगता है तो क्या कुछ मतलब के बिना इस रूम से उस रूम में, उस रूम से उस रूम में, ये सब घूमते हुए नहीं हो. इन द सेम वे मंगूस को भी कुछ, वो पूरा नया था, हमेशा जंगल में रहता था, बट नाउ ही इज़ लिविंग इन अ हाउस. सो व्हाट द वर्क ही इज़ डूइंग इज़ ही स्पेंट ऑल द डे. पूरा डे वो कैसा स्पेंड करता था? रोमिंग ओवर द हाउस में इधर उधर कोई मतलब के बिना घूमता रहता था. एट नाइट फॉल मीन्स वेन एवर, जब भी रात हो जाता है. ही वेंट टू टेडीज रूम एंड क्लाइम्ड अपॉन हिज बेड. ये उसकी मदर एंड फादर से इतना मिलजुला नहीं है, क्योंकि एनिमल्स को जल्दी वो टेडी को देख के उसको अच्छा लगा, स्मॉल बॉय से ही खेलने लगा था. सो दैट्स वाई रात होते होते ये भी टेडी की रूम में चला जाता था. एंड क्लाइम्ड अपॉन हिज बेड. टेडी तो सोता रहता था तो ये भी उसके बेड पे क्लाइंब करके. वी कैन सी दिस इन द पिक्चर. सी हाउ द मंगूस इज सिटिंग ऑन द पिलो ऑफ टेडी. टेडी की पिलो पे बैठी है. रिकी टिकी वॉज क्यूरियस. रिकी टिकी बहुत क्यूरियस. अंडरलाइन द वर्ड क्यूरियस चिल्ड्रन. क्यूरियस मीन्स ईगर टू नो समथिंग. ईगर मीन्स एंग्जाइटी. आप में एक इंटरेस्ट जो होते हैं, मतलब किसी चीज़ को जानने के लिए, किसी कोई इंटरेस्टिंग थिंग के बारे में जानने के लिए जो आपकी एंग्जाइटी होती है, दैट इज़ व्हाट इज़ क्यूरियस मीन्स. ही वॉज अ रेस्टलेस कंपेनियन. ही वॉज अ रेस्टलेस कंपेनियन. रेस्टलेस मीन्स विदाउट एनी रेस्ट. बिल्कुल रेस्ट लेता नहीं है वो. रेस्टलेस मीन्स बिल्कुल नॉट एबल टू कीप स्टिल, मतलब एक सेकंड के लिए रुका हुआ नहीं रहेगा इधर उधर. वी कैन सी सो मेनी किड्स डूइंग लाइक दिस ना. इधर उधर मतलब कभी भी, मतलब एक सेकंड के लिए टिकता नहीं है, बोलते हैं हम ऐसा. रेस्टलेस मीन्स नॉट एबल टू, एक जगह बैठे हुए, थोड़ी देर बैठे हुए रहा, चुपचाप रहा, ऐसा नहीं है. ही वॉज अ रेस्टलेस कंपेनियन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपेनियन? मीन्स फ्रेंड. ही इज़ अ रेस्टलेस कंपेनियन. ही हैड टू गेट अप and attend to every noise all through the night and find out what made it. इसका काम क्या है? he had to get up मतलब उसको उठना पड़ता है. कब? एंड अटेंड मीन्स जो भी नॉइस होता था घर पे, मतलब रात में कोई छोटा मोटा आवाज़, कोई बर्ड की आवाज़ आया, कोई एनिमल की आवाज़ आया, या कुछ भी आवाज़ आया, व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू चेक ऑन ईच एंड एवरी साउंड ही हर्ड. हियर अटेंड का मतलब होता है, व्हाट रिकी टिकी यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू चेक on every sound he heard, whatever the sound he used to hear, he used to check on that. हाँ, ये आवाज़ कहाँ से आया, कैसा आया, किसने किया, यही काम था इसकी. all through the night मतलब पूरा रात भर यही काम करता था. and find out what made it, किस वजह से ये आवाज़ हुआ, ये find out करना चाहता है. टेडीज मदर एंड फादर केम इन टू लुक एट देयर बॉय. अब रात हो गया, टेडी सो गया हो, तो एक बार टेडी की मम्मी और पापा उस रूम में आए थे. they want to see what the boy is doing, and Ricky Tikki was awake on the pillow and the boy is sleeping, and Ricky Tikki बिल्कुल आराम से उठा हुआ था. ये तो I don't like that, he may bite the child. What Ricky Tikki's Teddy's mother is saying, I don't like that. ये क्या है? ये मंगूसा के पिल्लो पे बैठ गई थी. he may bite the child, वो मेरा बेटा को हर्ट कर सकता है. he may bite, वो काट भी सकता है. heal, देखो बेटा, हील
he apostrophe double L, he'll means he will, this is the short form of he will. He'll do no such thing, वो ऐसा काम नहीं करेगा. Teddy is safer with that little animal than if he had a bloodhound to watch him. Teddy apostrophe s means Teddy is safer, मतलब अपना टेडी बिल्कुल सेफ है. विद दैट लिटिल एनिमल, ये मंगूस से टेडी को कोई हार्म नहीं होएगा. एंड ही इज़ वेरी सेफर इफ़ ही देन, मतलब किससे अगर कंपेयर करो तो इफ़ ही हैड ए ब्लड हाउंड टू वॉच हिम. ब्लड हाउंड क्या होता है बेटा? ब्लड हाउंड इज़ अ ब्रीड ऑफ डॉग. ए ब्लड हाउंड डॉग की एक तरह की ब्रीड है जिसमें ये कैसा होता है, वो वेरी बिग, मतलब दे आर वेरी लार्ज, बिग इन साइज़ में बहुत बड़े होते हैं. एंड दे हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल. बहुत सारे लोग ऐसा ये ब्लड हाउंड ब्रीड के डॉग को घर पे रखना चाहते हैं, है ना. सो ऐसा अगर मान लो तुम अपना बच्चा को ऑब्जर्व करने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए कोई एक ब्लड हाउंड ब्रीड की डॉग भी लाओगी तो भी वो जितना अच्छा केयर नहीं कर पाएगा. मोर देन दैट आर टेडी इज सेफ विद दिस मंगूस. इन दिस वे हिज फादर, पापा ने मम्मा को समझाए थे, है ना. नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, इतना वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है. ही विल डू नो सच थिंग, ये ऐसा कुछ हर्ट करने वाला काम तो नहीं करेगा. नाउ टर्न योर पेज चिल्ड्रन. ओला, वी आर गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट. नेक्स्ट डे सो के उठ गया है रिकी टिकी एंड ही वॉन्ट्स टू गो फॉर ब्रेकफास्ट. ओला, VOILA. हाउ टू प्रोनाउंस इट चिल्ड्रन? ओला. व्हाट डू यू मीन बाय ओला? ये ओला क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो एन एक्सक्लेमेशन वर्ड. और ऐसी वर्ड हम इसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं कभी किसी का अटेंशन लेना चाहते हैं. इफ़ यू वांट टू कॉल समवन या इफ़ यू वांट टू कैच समवन्स अटेंशन देन वी यूज़ दीज वर्ड्स के. या हियर यू आर, देयर यू आर. अच्छा देखो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वी आर गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट. वी apostrophe RE, this is the short form of we are going for breakfast. अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं. I will, again this is a short form of I will. I'll have a banana and a few boiled eggs. मैं एक बनाना और थोड़ा सा boiled eggs खा लूँगा ब्रेकफास्ट में. Then what happened? Ricky Tikki went out into the garden to see what was to be seen. तो रिकी टिक्की कहाँ गई थी? गार्डन में चला गया था ये रिकी टिक्की. क्यों? बिकॉज द बॉय इज़ गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट एंड ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. सो रिकी टिक्की कहाँ? गार्डन में चला गया था. एंड वॉट ही सॉ वॉट वॉज टू बी सीन. जो देखना था वो देख लिया उसने. क्या देखा था? इट वॉज ए लार्ज गार्डन. इट इज़ अ वेरी बिग गार्डन. बहुत बड़ा गार्डन है विथ बिग बुशेश. बुशेश मीन्स क्या है बेटा? बहुत सारे ट्रीज एक साथ नज़दीक में नहीं होते हैं, मतलब क्लम्प, एक ग्रुप बना के, क्लम्प ऑफ श्रब्स, जिसमें छोटी छोटी स्टेम्स हो के श्रब्स नहीं होते हैं, स्मॉल प्लांट्स, उनकी ग्रुप को हम बुशेश बोलते हैं. बहुत सारे बुशेश है. किसकी बुशेश है? बुशेश रोज़ प्लांट की बुशेश है. लाइम एंड ऑरेंज ट्रीज, लेमन एंड ऑरेंज की ट्रीज भी है. clumps of bamboos means bamboos की पूरा ग्रुप. इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन. clumps of bamboos मतलब बैम्बूस की जो ट्रीज होते हैं ना, पतले पतले स्टिक्स जैसा, वो बिल्कुल एक साथ टुगेदर एक सेम बेस पे बहुत सारे बैम्बू स्टिक्स एक साथ जब होते हैं, देन वील कॉल इट एज clumps of bamboos. बहुत सारे बैम्बूस है. एंड thickets of high grass मतलब बहुत बड़ा ग्रोन अप हुआ ग्रास भी है. एंड thickets मीन्स ये एक तरह की ग्रास होते हैं, ग्रास ही, बट वो कैसा ग्रो हुआ है? थिकेट्स मीन्स अ ग्रुप, पूरा एक ग्रुप, कंप्लीट एरिया विथ अ लॉट ऑफ बुशेस एंड स्मॉल ट्रीज ग्रोइंग वेरी क्लोज टुगेदर. मतलब एक साथ ही देखो, अभी ये आप हम पेज नंबर 57 में देख सकते हैं. ओके, उधर क्या, उस पिक्चर में आप क्लियरली वो गार्डन की सीनरी देख सकते हो. एक तरफ पूरा बहुत सारा झाड़े घास है, अनवांटेड प्लांट्स है, छोटी छोटी ट्रीज है, बुशेस है, ये सब एक साथ एक ही एरिया में हो तो हम इसको बोलते हैं थिकेट्स. थिकेट्स मीन्स अ एरिया विथ अ लॉट ऑफ बुशेस, स्मॉल ट्रीज. ये सब कैसा ग्रो हो रहे हैं? वेरी क्लोज टू वन अनदर, बिल्कुल दूर दूर होके गार्डन में जैसा अपन दूर दूर स्पेस देख के कराते हैं, ऐसा नहीं, एकदम
एकदम पास में होके। थिकेट्स ऑफ हाई ग्रास, बहुत सारा ग्रास भी है। रिकी टिकी लिक्ड हिज लिप्स, रिकी टिकी ये सब देख के अपना लिप्स को लिकिंग किया था। व्हाट डू यू मीन बाय लिकिंग? लिकिंग मीन्स पास द टंग ओवर समथिंग इन ऑर्डर टू टेस्ट, मतलब वो अपनी टंग को अपने लिप्स पे लाके ऐसा लिकिंग कर रहा था। मीन्स हाँ, इधर मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है। बिकॉज रिकी टिकी इज़ ए वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल्स को तो दूसरा क्रीचर्स को हंट करके ईटिंग हैबिट्स होते हैं उनकी। दे आर ईटिंग हैबिट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। दैट्स वाई ही वेंट आउट इनटू द गार्डन में आ गया और पूरा प्लेस देख के उसको बड़ी अच्छा लगा। बिकॉज दिस इज़ नॉट ए वेल मेंटेन्ड गार्डन, है ही नहीं ये तो। सो ही सॉ द इट इज़ अ वेरी बिग गार्डन विथ बिग बुशेस है, रोज़ प्लांट्स, रोज़ बुशेस है, लाइम एंड ऑरेंज की ट्रीज़ है, बैम्बू ट्रीज़ है, ग्रास है। तो उसको अच्छा लगा ये देख के। दिस इज़ अ परफेक्ट हंटिंग गार्डन। यस, इधर मैं बहुत अच्छा से हंटिंग कर सकता हूँ। बिकॉज रिकी टिकी लाइक्स टू हंट। यस, ऑब्वियसली आई कैन डू गुड हंटिंग इन दिस गार्डन। रिकी टिकी वॉज इन द गार्डन एंड ही हर्ड सम वॉइसेस। जब ये गार्डन में था तब इसको कुछ वॉइसेस सुनाई दिया। वाई डू आई हियर सच सैड वॉइसेस? ऐसा क्या उदास उदास सी आवाज़ें आ रही है? इट वॉज डार्जी द टेलर बर्ड एंड हिज वाइफ। ये आवाज़ कौन कर रहे? डार्जी द टेलर बर्ड, हमने डिस्कस किया ना पहले। टेलर बर्ड एंड हिज वाइफ, बोथ वी कैन सी टू बर्ड्स सिटिंग ऑन अ branch here, so they are Darji and his wife. They made a beautiful nest by pulling two big leaves together and stitching them up and filled the hollow with cotton and feather fluff. What these two birds done? ये दोनों ने क्या किया था? They had made a beautiful nest. बहुत सुंदर सा नेस्ट बनाया, क्योंकि टेलर बर्ड्स आर वेरी फेमस फॉर बिल्डिंग देयर नेस्ट। वो अपना नेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से स्यू करके बिल्कुल स्टिचिंग किया जैसा करते हैं। दैट्स वाई वी हैव गिवन द नेम टेलर टू द बर्ड, टेलर बर्ड। They had made a beautiful nest. कैसा बनाया? By pulling two big leaves together. दो बड़े बड़े पत्ते को एक साथ लाए थे। And stitching them up. उन दोनों को अच्छा से वो क्लाइंबर्स या क्रीपर्स की जो धागे जैसे चीज़ें होती है ना, उसको लेके इसको अच्छा से स्यू कर दिया। एंड हैड फिल्ड द होलो, बीच में जो खाली स्पेस है उसमें किससे फिल कर दिया? दे हैज़ फिल्ड इट अप विथ कॉटन एंड फेदर फ्लफ। बीच में थोड़ा कॉटन भी रख दिया एंड फेदर फ्लफ। फ्लफ मीन्स सॉफ्ट फैब्रिक जो होता है बेटा, सॉफ्ट फाइबर्स वगैरह होता है, फैब्रिक हो फाइबर हो, ऐसा फेदर्स, बर्ड की फेदर्स वगैरह होते हैं ना, उन सब से ये सब नेस्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये सब कलेक्ट करते हैं। और इन चीज़ों से उसने वो होलो मीन्स बीच में जो गैपिंग स्पेस रह जाता है उसको फिल कर दिया। The nest swayed, swayed, swayed. What it is children? Swayed. Swayed का मीनिंग होता है slowly, इधर उधर। जैसा आपने वॉच में पेंडुलम देखा क्या? कुछ वॉचेस में, वॉल क्लॉक्स में पेंडुलम होता है बीच में, या बेस से इधर उधर, टू एंड फ्रो, आगे से पीछे, पीछे से आगे, आगे से पीछे, पीछे से आगे, ऐसे एक रिदम से मूव होते रहते हैं। दैट इज़ व्हाट स्विंग मीन्स। मतलब झूला झूला जैसा, स्विंगिंग स्लोली, मतलब बहुत धीरे धीरे से, स्विंगिंग स्लोली टू एंड फ्रो फ्रॉम ए बेस। एक बेस से इधर से उधर, इधर से उधर से इधर, ऐसा जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्वेड। तो जैसा नेस्ट बनाया था वो भी क्या पत्तों से बनाया, और उसके अंदर कॉटन और फेदर फ्लफ रखा तो वो कितना हल्का होता है। तो जब हवा ऐसा आता रहता है तो धीरे धीरे से वो ऐसा स्विंगिंग मोशन में झूला जैसे इधर उधर मूव हो रहा था। As they sat on the rim and cried, the nest swayed. The nest swayed. Swayed मतलब ऐसा इधर उधर, वो जो मूवमेंट मैंने अभी बताया ना, ऐसा वो मूवमेंट कर रहा था। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे। As they sat on the rim and cried, क्योंकि ये दोनों टेलर बर्ड एंड उसकी जो वाइफ है, ये दोनों रिम मतलब ब्रांच ऑफ द ट्री पे बैठे हैं और बैठ के रो रहे थे। तो ये दोनों बैठे भी हैं तो थोड़ा मूवमेंट होता है ना, उस मूवमेंट से थोड़ा वो नेस्ट इधर उधर स्वे ऑन हो रही है। ओके, कोशिश